डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का टॉपिक एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को देखेंगे और कुछ सम्स देखते हैं। System of measurement of angles. So there are two types of system of measurement of angles. First one is sexagesimal system, that is also called as degree measure. In this system, the unit of measurement of angle is degree, and we are familiar about the degree. We know that one complete rotation is equal to 360 degree. So we can say that 360th part of one rotation is called 1 degree, and 1 degree is equivalent to or equal to 60 minutes. Yani 1 degree is further divided into 60 parts, and each part is called minute. So 1 degree is equal to 60 minutes. Further, each degree is further divided into 60 parts, and each part is called second. So 1 minute is equal to 60 seconds. So ये हमारे पास रिलेशंस है कि 1 complete rotation is equal to 360 degree, and 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute equal to 60 seconds. So 1 degree is equal to 60 minutes. So we can write 1 degree is equal to 60 into 1 minute. So from this relation we can define 1 minute. So value of 1 minute is equal to 1 upon 60 degree. 60 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. सिमिलरली 1 मिनट इज इक्वल टू 60 into 1 second. So 1 second will be defined as 1/60 minute. So 1 second is equal to 1/60 minute. सो डियर स्टूडेंट्स, सो डिग्री मेजर में हमको ये इक्वेलेंट, ये रिलेशंस, ये एज ए फार्मूलेस हम यूज़ करते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट. सेकेंड, system is circular system. It is also called as radian measure. So let us see what is radian measure. In this system, the unit of measurement of angle is a radian. Let us study about radian. So first we define, let R be the radius of circle with center O. O is a center of circle having radius R. So here in this figure, O is a center of circle, R is the radius of circle. This is initial arm, initial side, and this is terminal side. We take 2 points A and B on the circle, such that the length of arc AB is R. So in this figure, A and B are any 2 points on a circle, such that the length of arc is R. हमने अभी डिफाइन किया, रेडियस R लिया है हमने, रेडियस ऑफ सर्कल इज R, एंड हियर लेंथ ऑफ आर्क इज आल्सो R है, यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू radius of circle, then
the measure of central angle AOB is defined as 1 radian. So this angle is called 1 radian and it is denoted by this symbol. So dear students, यहाँ इस फिगर में हमने एंगल को डिफाइन किया हुआ है. ये जो सेंट्रल एंगल है वो सेंट्रल एंगल कैसा है? सब्सटेंडेड बाय आर्क है whose length is equal to radius of circle. So we can also define radian as a radian is a measure of an angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of circle. So radian is a measure है, radian is a angle है, angle which is subtended by arc at the center in which length of arc is equal to radius of circle. So हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एंगल है, जो लेंथ ऑफ आर्क सब्सटेंड कर रहा है, यानी आर्क एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है एट द सेंटर, और साथ में कंडीशन क्या है कि व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन this angle is called radian. Note, a radian measure is independent of radius of circle. इसको हम एक फिगर से समझते हैं कि दिस इज द सर्कल सेकेंड एंड ये these three circles are concentric circle है having center O and AOB is a एंगल है सब्सटेंडेड एट द सेंटर है. सो हमने 3 लाइंस पैरेलल लाइंस ड्रा किए. कैसे कि ये लेंथ ऑफ दोनों रेडियस, ये फर्स्ट सर्कल के पर एनी 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमको एक ट्राइंगल मिला है. सिमिलरली एक लेंथ हमने एक पैरेलल साइड डिफाइन किया. कैसे कि सेकेंड सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हमने जो इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया, और थर्ड सर्कल में भी. सो दिस इज द रेडियस है. फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है R1 इज ए रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इन विच length of arc is equal to radius of circle R1, therefore angle subtended at the center is 1 radian है. So first concentric circle में radius R1 है और angle subtended at the center is 1 radian है. ये second circle का radius है R2 और angle subtended at the center is 1 radian, यानी 1 radian ही है. R3 is a radius of third circle है and angle subtended at the center is also 1 radian है. So इस फिगर से जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल था उसका रेडियस R1 है, एंगल 1 रेडियन. सेकेंड सर्कल का रेडियस R2, एंगल 1 रेडियन. थर्ड सर्कल का रेडियस R3, एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर इज 1 रेडियन. यानी R1, R2, R3 ये रेडियस चेंज हो रहे हैं, सर्कल जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसका रेडियस चेंज हो रहा है, लेकिन एंगल जो है कांस्टेंट है. R1 के लिए R1 रेडियस है, देन एंगल इज 1 रेडियन ही है, कांस्टेंट है. R2 रेडियस के लिए भी सेंट्रल एंगल कांस्टेंट है, 1 रेडियन ही है. R3 रेडियस के लिए भी सेंट्रल एंगल कांस्टेंट है, 1 रेडियन. सो रेडियस चेंज हो रहा है लेकिन एंगल कांस्टेंट है. इसी को कहते हैं हम कि दिस एंगल सेंट्रल एंगल रेडियन 1 रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्कल. सो वी कैन से in general a radian measure is independent of radius of circle. It is also defined as
that the measure of central angle is proportional to the length of an arc intercepted it on the circle. यानी सेंट्रल एंगल और लेंथ ऑफ आर्क ये कैसे रहते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं. ये इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म है. सेकेंड नोट, द साइन कन्वेंशन डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो होल्ड इन दिस सिस्टम. जैसे हमने डिग्री में देखा था, डिग्री के अंदर साइन कन्वेंशन हमने देखा था. कैसे रोटेशन चेंज होगी, साइन चेंज हो जाती है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन रहेगी, एंगल पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन वहाँ पर हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं. और रोटेशन जब क्लॉकवाइज रहेगी सो निगेटिव एंगल रहता है, वहाँ पर हम माइनस सिंबल यूज़ करते हैं. तो सिमिलरली रेडियन में भी जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी तो रेडियन जो है हमको पॉजिटिव 1 रेडियन जो है पॉजिटिव 1 रेडियन मिलेगा. और जब रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगी सो निगेटिव एंगल मिलेगा, यानी -1 रेडियन रहेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से कंसेप्ट में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हम डिफाइन नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी एक नोन फैक्ट रहते हैं. जैसे हमने यहाँ पर देखा है ये जो सिंबल है एंगल को डिनोट करता है, ये डायरेक्टेड एंगल को डिफाइन करता है. लेकिन इसके बाद जब भी हम सिंबल यूज़ करेंगे, एक एंगल का सिंबल बेसिक यानी सादा सा सिंबल अगर हम यूज़ करेंगे, तब भी वो क्या अंडरस्टूड रहेगा कि वो डायरेक्टेड एंगल है. सिमिलरली कि एंगल मेजर्ड इन रेडियंस आर ऑफन नॉट लेबल विद द यूनिट. समटाइम्स कैसा होता है कि एंगल पर कोई हमने यूनिट यूज़ नहीं किया, डिग्री की, रेडियन की, तब वो क्या अंडरस्टूड रहेगा कि वो रेडियन में एंगल जो है मेजर्ड इन रेडियन है. इफ द एंगल मेजर्ड डजंट हैव अ डिग्री सिंबल, you can usually assume that the angle is measured in radian. ये अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि अब फर्दर स्टडीज़ में जब भी हमको एंगल के ऊपर अगर हमको सिंबल डिफाइन नहीं है, अगर डिग्री का सिंबल है दैट मीन्स वो एंगल मेजर्ड इन डिग्री है, रेडियन का सिंबल रहेगा मेजर्ड इन रेडियन रहेगा. और जब एंगल पर कोई सिंबल नहीं रहेगा, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट कि एंगल मेजर्ड इज इन रेडियन है. रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. अभी हमने रेडियन को डिफाइन किया है. हमने 2 टाइप्स के जो है ना सिस्टम को देखा है. वन इज डिग्री मेजर है एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजर है. सो दोनों का रिलेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन को देखते हैं. कंसिडर ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R. And radius R. We take 2 points A and B on this circle. So length of arc is equal to R. Length of arc AB is equal to R define किया. Therefore, the angle subtended by this arc at the center is 1 radian. क्योंकि यहाँ पर length of arc R है and radius is R, यानी length of arc is equal to radius of circle है, then angle subtended by the arc at the center is 1 radian. So measure of angle OAB is 1 radian. अभी हमने नोट्स में देखा कि सेंट्रल एंगल जो है ये कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस रहता है. और वी कैन से कि सेंट्रल एंगल और ये लेंथ ऑफ आर्क ये प्रोपोर्शन में रहते हैं. सो इस फिगर में हमको 2 सेंट्रल एंगल और 2 लेंथ ऑफ आर्क मिल रहे हैं. यानी ये स्मॉल जो सर्कल AB यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क है, उसका सेंट्रल एंगल 1 रेडियन है. अगर हम सर्कल को माइंड में रखते हैं तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या रहेगा, वो लेंथ ऑफ आर्क ही रहेगा, और उसका सेंट्रल एंगल ये मिडल वाला एंगल रहेगा सर्कल का. सो बाय यूजिंग दिस फैक्ट द मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क विच सबटेंड देम. सो ये लेंथ ऑफ आर्क और सेंट्रल एंगल ये प्रोपोर्शन में रहते हैं. तो यहाँ पर हम
इस लेंथ ऑफ आर्क का सेंट्रल एंगल और इस सरकमफ्रेंस का सेंट्रल एंगल ये प्रोपोर्शन में रहेंगे। सो हमने डिफाइन किया मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। यहाँ पर ये एंगल के सिंबल ये कौन सा है, डायरेक्टेड एंगल है। यहाँ पर जो है ना डायरेक्टेड एंगल का पर्टिकुलर सिंबल नहीं भी रहेगा तब भी वो क्या अंडरस्टूड रहेगा कि वो डायरेक्टेड एंगल है। सो ए सेंट्रल एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, और ये सबटेंडेड बाय इसका आर्क है तो ये लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का सेंट्रल एंगल है ये, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सेंट्रल एंगल एट द सेंटर रहेगा। ना इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। एंगल ए ओ बी इज 1 रेडियन है, फिगर से दिस इज 1 रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क आर है, एंगल एट द सेंट्रल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल यानी सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री रहेगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए जो फार्मूला है वो 2 पाई आर। तो इन सबको हमने सब्सटीट्यूट किया है। मेजर सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज 1 रेडियन, ये सेंट्रल एंगल था इस आर्क का 1 रेडियन, और ये आर्क की लेंथ आर है, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है 2 पाई आर। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं 1 रेडियन 360 डिग्री राइट साइड में ट्रांसफर हो गया, 360 डिवाइड बाय 2 पाई आर आर ये कैंसिल। नाउ 2 से 360 को डिफाइन करेंगे, सो वी गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। So 1 radian is equal to 180 by pi डिग्री। So इसी रिलेशन से हमको और दो फॉर्मूले से ऑब्टेन हो गए। सो इसी रिलेशन से जब हम पाई को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 1 रेडियन की वैल्यू है, सो ये इसी से हम 1 डिग्री की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। सो ये पाई रेडियन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 डिग्री, और यहाँ से 1 डिग्री क्या मिलेगा, 180 इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो ये 3 फार्मूलेस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियंस है। सो ये फार्मूले को हमको बाय हार्ट करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे बाय हार्ट करेंगे कि ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। डिग्री को हम जनरली नंबर्स में मेजर करते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाला पार्ट यानी नंबर्स 180 न्यूमरेटर पर रहेगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में जब भी कन्वर्ट करना है इसको, सो डिग्री वाला पार्ट 180 न्यूमरेटर पर रहेगा और पाई डिनोमिनेटर में रहेगा। और 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन का पार्ट पाई वो न्यूमरेटर पर रहेगा। इस पर से जो है ना हमको ये इजीली जो है ना बाय हार्ट हो जाता है। नोट, वी हैव 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14159 वी गेट, यानी इस रिलेशन में पाई की वैल्यू हम 3.14159 सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी गेट द इक्विवेलेंट ये रिलेशन। सो वी गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, और इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। सो इस रिलेशन से हमको 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री मिल रहा है। दैट मीन्स डिग्री इज ये इस रिलेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। सेकेंड, वी हैव 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है। सो इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। सो वी गेट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली। सो थर्ड वाला जो पॉइंट है, इट फॉलोज दैट द रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री, यानी इस फर्स्ट रिलेशन से हमको मिलेगा कि रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्रीज। यहाँ पर हमने एक टेबल डिफाइन किया ये
डिग्री और रेडियन को कन्वर्जन है। दो यानी सम स्टैंडर्ड एंगल को हम ले लिया है, डिग्रीज के स्टैंडर्ड एंगल्स है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री उनके इक्विवेलेंट रेडियंस है। तो इनका कन्वर्जन यूज़ करने के लिए हम जो है ये फार्मूलेज यूज़ करेंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो वी यूज़ दिस रिलेशन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, सो वी यूज़ द रिलेशन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। उसी का एक शॉर्टकट देखते हैं, रेडियंस, ये रेडियंस है पाई बाय 6, पाई बाय 6 का इक्विवेलेंट डिग्री क्या होगा, तो उसको इजी मेथड से कैसे फाइंड करेंगे हम, कि इस पाई के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 180। हमने रिलेशन देखा था सेकेंड वाला फार्मूला, पाई डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो पाई इज इक्वल टू 180 पुट करेंगे, सो 180 बाय 6 इज 30 डिग्री, 180 by 4 is 45 degree, 180 by 3 is 60, and 180 by 2 is 90, 180 by 3 is सॉल्व करेंगे तो 120 मिलेगा। और ये तो एक रिलेशन ही है डायरेक्टली, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी तरह जो है पाई की वैल्यू 180 पुट करके भी हम जो है ना उसका इक्विवेलेंट डिग्री जो है डिफाइन कर सकते हैं। कन्वर्जन अमंग डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री को मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना है, या फिर इनके इंटर कन्वर्जन जब करना है हमको, तो उसके लिए हम बेसिक फार्मूलेस जो हमने डिग्री में देखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, उनको यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू मिनट, मिनट इंटू सेकेंड एंड सेकेंड इंटू मिनट। तो हम कन्वर्जन के शॉर्टकट फार्मूले देखते हैं। डिग्री टू मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और डिग्री को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री टू मिनट, डिग्री क्या है, लार्ज यूनिट है, मिनट इज स्मॉल यूनिट है। डिग्री और मिनट में डिग्री लार्ज यूनिट है और मिनट स्मॉल यूनिट है। सो मिनट इज लार्ज और सेकेंड इज स्मॉल यूनिट है, डिग्री इज लार्ज यूनिट है एंड सेकेंड इज स्मॉल यूनिट है। सो शॉर्टकट फार्मूला क्या रहेगा, जब भी हमको लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60 से। 60 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री की इक्विवेलेंट वैल्यू जो मिनट में है वो 60 है, यानी डिग्री और मिनट का जो रेशियो है वो क्या 1:60 का है, इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई करें। कब मल्टीप्लाई करें, लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 60। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना है कि हमको कन्वर्जन किस में करना है। सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हमको क्या डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी लार्ज को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 60। सो ये 0.9 डिग्री इसको स्मॉल यूनिट मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सो ये जो क्वांटिटी थी 0.9 इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और मिनट का सिंबल जो है ना ब्रैकेट के ऊपर डिफाइन करेंगे। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, लार्ज यूनिट टू स्मॉल यूनिट है, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेथड है। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो गिवन जो क्वांटिटी रहेगी उसको 60 से मल्टीप्लाई करो और ये डिग्री का कन्वर्जन मिनट हो जाएगा। मतलब जनरली क्या है, हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें, डिग्री को रेडियन में मिनट में कन्वर्ट करना है या डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा केयर करना है कि ये जो डिग्री है 0.9 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 0.9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मिनट का सिंबल। 0.87 डिग्री इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 0.87 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाद डिग्री का नोटेशन सिंबल। 0.974 डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, सो 0.97 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करना है और ब्रैकेट के ऊपर मिनट का सिंबल। नेक्स्ट मिनट टू सेकेंड, मिनट लार्ज है, ये स्मॉल यूनिट है, लार्ज टू स्मॉल यूनिट कन्वर्ट करना है और उसको
उसका बेसिक जो रिलेशन है मिनट टू सेकेंड में कन्वर्ट करना, 60 1:60 का रिलेशन है वो। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई। तो 0.9 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 0.9 को 60 और सेकेंड से मल्टीप्लाई, यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड का सिंबल जो है ना यूज़ करेंगे। 0.87 मिनट है, इसको डिग्री में सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 0.87 इंटू 60 सेकेंड का सिंबल। 0.974 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस क्वांटिटी को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के ऊपर सेकेंड का सिंबल। नेक्स्ट है डिग्री टू सेकेंड, डिग्री टू सेकेंड कन्वर्ट करना है। सो डिग्री से नीचे मिनट है, मिनट से नीचे सेकेंड है, तो हमको क्या करना है, लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये डिग्री के बाद मिनट आता है और मिनट के बाद सेकेंड आता है। सो 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 0.9 डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमको 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 और ये सेकेंड का सिंबल। 0.87 डिग्री है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, वेरी स्मॉल यूनिट है, उसके बीच में मिनट भी आ रहा है तो 2 टाइम्स 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड का सिंबल। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये शॉर्टकट मेथड देखा है, लार्ज यूनिट टू स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 60 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिग्री और मिनट के बीच में 1:60 का रेशो है, मिनट और सेकेंड के बीच में 1:60 का रेशो है, और डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट, जब हमको कन्वर्ट करना है मिनट टू डिग्री, सेकेंड टू मिनट, सेकेंड टू डिग्री, दैट मीन्स स्मॉल यूनिट टू लार्ज यूनिट कन्वर्ट करना है हमको, तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 60। 60 से क्यों, क्योंकि ये मिनट और डिग्री में, डिग्री और मिनट में 60 का रेशो है, 1:60 का। सो स्मॉल टू लार्ज में 60 से डिवाइड करना है हमको, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हम ये शॉर्टकट फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो हमको कन्वर्ट करना है, तो हमको चेक कर लेना है कि कन्वर्जन कौन सा करना है, मिनट टू डिग्री कन्वर्ट करना है, मिनट स्मॉल है, डिग्री लार्ज है, सो स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडिंग बाय 60। फॉर एग्जांपल 36 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, स्मॉल टू लार्ज, 60 से डिवाइड। सो इस क्वांटिटी 36 को 60 से डिवाइड करेंगे और सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, डिग्री वाला। 48 मिनट्स है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, स्मॉल टू लार्ज है, 60 से डिवाइड करना है, सो 48 डिवाइडेड बाय 60, ब्रैकेट क्लोज और डिग्री का सिंबल। नाउ सेकेंड टू मिनट कन्वर्ट करना है, स्मॉल टू लार्ज, 60 से डिवाइड, क्योंकि दोनों का रिलेशन जो है ना मिनट और सेकेंड में 1:60 का रेशो है। सो स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करें। सो 36 सेकेंड है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सो 36 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। 48 सेकेंड्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 48 डिवाइड बाय 60 मिनट। नेक्स्ट सेकेंड टू डिग्री, सेकेंड टू डिग्री, सेकेंड के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद डिग्रीज। सो स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करते हैं, सो 2 टाइम्स, मतलब ये वेरी स्मॉल टू लार्ज है या फिर स्मॉल यूनिट टू वेरी लार्ज है, सो 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे। सो 36 सेकेंड्स है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो 36 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 डिग्री, या फिर 3600 से डिवाइड करो, या फिर 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करो। 48 सेकेंड्स है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो 48 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 डिग्री। सो ये हमने शॉर्टकट मेथड देखा है। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल जो है ना टेक्स्ट बुक से थोड़े डिफरेंट है, सो कन्वीनियंट के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड
second forms. So first one is 321.9 degree. We have relation 1 degree equal to 60 minute, 1 minute equal to 60 सेकेंड. हमको इस गिवन डिग्री को एक्सपांड करना है. किसमें? ये डिग्री में. ये डेसिमल डिग्री है, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर. तो डेसिमल डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप रहेगी, इसको पहले एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं. एक्सपांडेबल फॉर्म क्या रहेगा, इसमें ये 3 2 1 यानी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर ये इंटीग्रल पार्ट है और पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट डेसिमल पार्ट रहता है. तो दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं. हमने एक्सपांड किया इंटीग्रल पार्ट को और ये डेसिमल पार्ट को सेपरेट किया है यहाँ से. बेसिक है. हमने उसके बाद ये डेसिमल जो भी पार्ट आएगा उस डेसिमल वाले पार्ट को हमको रिड्यूस करना है. डिग्री में रहेगा तो स्मॉल डिग्री में रहेगा तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे. मिनट में आ गया तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें. तो डेसिमल पार्ट यहाँ पर, सो ये 321 डिग्री एज इट इज़ रहेगा. ये जो डेसिमल पार्ट है, इस डेसिमल पार्ट डिग्री में तो उसकी स्मॉल यूनिट, उसके बाद डिग्री के बाद मिनट्स आता है, इसलिए डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो अभी हमने मेथड देखा है, डिग्री लार्ज है, मिनट स्मॉल यूनिट है, लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, 0.9 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.9 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट. और इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या है, ये रिलेशन यूज़ करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. तो हमको 0.9 डिग्री को फाइंड करना है. सो दोनों साइड में, बोथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है. और ये शॉर्टकट मेथड में हमको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई. सो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट. नाउ सिंप्लीफिकेशन. अब आगे का पार्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन. बस ये एक स्टेप जो है ना न्यू थी. सो ये एसिटीज़, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी गेट 54 मिनट. यानी यहाँ से हमको डेसिमल फॉर्म जो है ना एलिमिनेट हो गया. बस इसको कोलैबोरेट कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ज्वाइन करना है मतलब प्लस का सिंबल हटा देंगे और उसके स्पेस एक छोटा सा डिस्टेंस रखें. तो ये 321 डिग्री 54 मिनट्स. सो गिवन पार्ट था ये डेसिमल डिग्री था, इसको हमको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना था. तो इसने हमने क्या किया, पहले इसको एक्सपांड किया, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट जैसे आएगा डेसिमल पार्ट को डिग्री में, सो उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके से स्मॉल वाली यूनिट में इसको हमको रिड्यूस करना है. सो डिग्री था, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने का मेथड यूज़ किया हमने, 60 से मल्टीप्लाई किया 60 मिनट से, दोनों का प्रोडक्ट मिनट में कन्वर्ट हो गया. और ये मिनट जो है डेसिमल फ्री है, सो इसको कोलैबोरेट कर लेते हैं. इसको जो है ना ऐड कर लेना. ऐड करने के लिए मतलब ये प्लस का सिंबल जो है ना सिर्फ एलिमिनेट हो जाएगा. सो 321 डिग्री 54 मिनट सेकेंड. ये हमारा रिलेशन है. सेकेंड वाला ये सॉल्व करना है, डेसिमल डिग्री है, इसको फर्स्ट स्टेप एक्सपांड करते हैं. तो हमने एक्सपांड किया इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट एज इट इज़. अब डेसिमल पार्ट 0.87 डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं. तो मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, इस क्वांटिटी 0.87 को मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट. मेथड क्या रहेगा, 60 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट क्लोज करो और उसके बाहर इस ब्रैकेट के ऊपर मिनट का सिंबल. सो ये डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो गया. इसका स्टैंडर्ड मेथड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. हमको फाइंड करना है 0.87 डिग्री. सो बोथ साइड में 0.87 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन. अब आगे का पार्ट सिंप्लीफिकेशन है. तो 0.87 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वो अगेन हमको डेसिमल में पेड़ना है. सो ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज़. अब ये जो पार्ट मिला है वो अगेन डेसिमल फॉर्म में है, 52.2 मिनट्स है डेसिमल फॉर्म में. तो फिर इसको एक्सपांड करते हैं. इंटीग्रल पार्ट 52 मिनट, डेसिमल पार्ट 0.2 मिनट. तो एक्सपांड करने का मेथड क्या है, इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे प्लस डेसिमल पार्ट और दोनों पर सेम यूनिट आएगी मिनट की. तो ये फर्स्ट टू एज इट इज़ रहेगा, डिग्री और मिनट का पार्ट. ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट मिनट में
सो मिनट से स्मॉल सेकेंड होता है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है इसको। सो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, लास्ट टू स्मॉल 60 से मल्टीप्लाई, सो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 मिनट से मल्टीप्लाई, बस केयर करना है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट के ऊपर सेकेंड का सिंबल। शॉर्टकट मेथड था ये। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, 1 मिनट की इक्विवेलेंट सेकेंड को लिखते हैं, बोथ साइड में फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको 0.2 की वैल्यू फाइंड करना है, 0.2 मिनट्स की। सो बोथ साइड में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिलेशन आ गया। सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट टू एज इट इज़ 0.2 इंटू 60 दोनों का प्रोडक्ट, और वो हमको 12 सेकेंड मिला है, डेसिमल फ्री मिला है। अब इसको कोलाबरेट कर लेते, इसको ऐड कर लेना है। सो ऐड करना है मतलब प्लस के सिम्बॉल्स जो है ना एलिमिनेट हो जाएंगे। सो आंसर इज 74 डिग्री 52 मिनट्स 12 सेकेंड्स। सो थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन है -30.6974 डिग्री है, डेसिमल डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स सेकेंड्स में। सो हम इसको एक्सपांड करते हैं, माइनस को सेपरेट रखेंगे, इंटीग्रल पार्ट डिग्री पर प्लस डेसिमल पार्ट डिग्री में, क्योंकि डिग्री में था। सो माइनस को हमने सेपरेट किया, इंटीग्रल पार्ट डिग्री प्लस डेसिमल पार्ट डिग्री में। सो -30 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। ये डेसिमल पार्ट है, इस डेसिमल पार्ट को हमको डेसिमल फ्री करना है, किस में, ये डिग्रीज में। सो मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.6974 इंटू 60 मिनट। स्टैंडर्ड मेथड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, उसका इक्वेलेंट उसको यूज़ करते हुए 0.6974 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये रिलेशन आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन, सो इस ब्रैकेट के जो क्वांटिटीज़ हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रेगुलर मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज़ 41.682 मिनट्स। अगेन ये डेसिमल में आ गया, फिर इसको फर्दर सॉल्व करना है। सो -30 डिग्री प्लस, इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट मिनट में आएगा, इंटीग्रल पार्ट 41 मिनट प्लस डेसिमल पार्ट इन मिनट्स। सो ये फर्स्ट टू एज इट इज़, ये डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म को हमको रिड्यूस करना है, डेसिमल फ्री करना है। कैसे फ्री करेंगे, किसमें, ये मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई, तो 0.682 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, 1 ये मिनट की इतनी मिनट्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो 1 मिनट इक्वल टू सेकेंड्स का इक्विवेलेंट फॉर्म, और बोथ साइड में 0.682 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये ब्रैकेट, ये रिलेशन मिलेगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन, इस ब्रैकेट्स के क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई, ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़, इतने इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने, सो हमको मिला है 40.92 सेकेंड्स मिला है। सो फर्स्ट टू क्वांटिटीज एज इट इज़। अब ये थर्ड वाला जो सेकेंड्स में मिला है, अगेन डेसिमल में, लेकिन अब इस डेसिमल को जो सेकेंड्स में फर्दर हमको डेसिमल फ्री करने के लिए स्मॉल यूनिट, अब हमारे पास सेकेंड से स्मॉल यूनिट नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको, इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे। सो 40.92 वेरी वेरी क्लोज टू 41 सेकेंड्स है। सो इस क्वांटिटी को राउंडेड ऑफ करेंगे। सो या फिर डायरेक्टली ये किसके करीब में आ रहा है, 41 के वेरी वेरी क्लोज है। सो 41 सेकेंड्स। सो इसको हमने राउंडेड ऑफ किया। नाउ ये डेसिमल फ्री हो गया। नाउ इसको ऐड कर लेते हैं। सो आंसर इज -30 डिग्री 41 मिनट्स 41 सेकेंड्स। सो ये तीन सम्स हमने देखे, डेसिमल डिग्री को डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड बी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। सो गिवन जो पार्ट है वो डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल डिग्री में। यानी लास्ट वाला जो सम हमने देखा था वो डेसिमल डिग्री में गिवन था, इसको हमने
एक्सपांड किया था, कन्वर्ट किया था डिग्री, मिनट, सेकेंड्स में। अब उसका ये रिवर्स पार्ट है, गिवन जो पार्ट है वो डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में रहेगा, इसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना है और उसमें डेसिमल पॉइंट इनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सॉल्यूशन, सब पहले रिलेशन देख लेते हैं कि वी हैव 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो फर्स्ट सम है 200 डिग्री 36 मिनट्स, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। सो इसकी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो डिग्री में है, बस सेकेंड जो क्वांटिटी है मिनट्स, इस मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप रहेगी, इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं। ये एक्सपांडेबल फॉर्म है 200 डिग्रीज प्लस 36 मिनट्स। सो एक्सपांड करने का ये बेसिक मेथड। नाउ डिग्रीज में चाहिए, इसको डिग्रीज में, टोटल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ये क्वांटिटी डिग्रीज में है, बस इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सो ये 200 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। 36 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट स्मॉल यूनिट है, डिग्री लार्ज यूनिट है। सो स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करते हैं। सो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, 60 से डिवाइड करते हैं। सो 36 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 36 डिवाइड बाय 60 डिग्री, ये इसका शॉर्टकट मेथड। ये सेकेंड्स में, मिनट्स में था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करना है। सो 36 को 60 से हमने डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया है और उस पर सिंबल आएगा डिग्री का। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिनट की इक्विवेलेंट डिग्री हम यूज़ करते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। और हमको 36 मिनट, 1 मिनट की ये इक्विवेलेंट वैल्यू है। सो 36 मिनट की वैल्यू फाइंड करना है। सो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, सो हमको ये रिलेशन मिलेगा। सो हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना था, स्मॉल टू लार्ज, 60 से डिवाइड। सो 36 डिवाइड बाय 60 और सिंबल आएगा डिग्री का। नाउ बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ 36 डिवाइड बाय 60, इसको डिवाइड कर लेते हैं, वो डेसिमल फॉर्म में मिलेगा 0.6 और ये डिग्री का सेम सिंबल आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग वी गेट 200.6 डिग्री। सो गिवन पार्ट था डिग्री मिनट में था, इसको हमने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट किया। ये हमारे रिलेशंस है, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड है इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/60 डिग्री और 1/3600 डिग्री है। यानी स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे मिनट टू डिग्री में, और सेकेंड टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 2 टाइम्स 60 से डिवाइड। सो गिवन पार्ट है 111 यानी 111 डिग्री 48 सेकेंड्स है। सो पहले इसको हम एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं। सो डिग्री प्लस डिग्री वाली क्वांटिटी प्लस सेकेंड्स वाली क्वांटिटी। सो ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये सेकेंड्स में। सो फर्स्ट वाली क्वांटिटी एज इट इज़ 48 सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेकेंड से बाद, सेकेंड से पहले मिनट आता है, मिनट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या होता है, सेकेंड, मिनट्स एंड डिग्री होता है। सो डायरेक्ट इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल, वेरी स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे। सो ये 48 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 मिनट डिग्री, ये सेकेंड्स है, इसको मिनट सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करो या फिर 3600 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 48 डिवाइड बाय 3600 डिग्री। ये सेकेंड में था, 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करो या फिर 3600 से डिवाइड करेंगे और यूनिट चेंज हो जाएगी अब डिग्री में।
नाउ सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, ये स्टैंडर्ड मेथड है, 1 सेकेंड का इक्विवेलेंट डिग्री और 48 डिग्री को मिनट्स को फाइंड करना है। सो 48 से बोथ साइड में जाना मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये रिलेशन मिल गया। नाउ इसको फर्स्ट वाली क्वांटिटी एज इट इज, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, 48 डिवाइड बाय 3600, वो हमको डेसिमल फॉर्म में मिलेगा कि 0.0133 डिग्री। सो ये डिवीजन जो है ना हमको ये सॉल्व करना है, बेसिक है, थोड़ा सा लेंदी है मेथड है, लेकिन हमको बेसिक इजी मेथड है, इसको यूज़ करते हम डिवाइड कर लेते हैं। नाउ ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, या अभी डिग्री में है, सो दोनों को ऐड कर लेंगे। सो ऐड करेंगे, सो 111.0133 डिग्री। नाउ थर्ड वन इज -35 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स है। इनको डेसिमल डिग्री में, मतलब ये मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं, माइनस डिग्री वाली क्वांटिटी प्लस मिनट वाली क्वांटिटी प्लस सेकेंड वाली क्वांटिटी। सो -35 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। इस 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, स्मॉल टू लार्ज यानी 60 से डिवाइड करते हैं। सो 45 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। नेक्स्ट है ये इसका स्टैंडर्ड मेथड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, देयरफॉर 45 मिनट इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 60 डिग्री। नेक्स्ट 30 सेकेंड्स है, इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले मिनट और डिग्री मतलब 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करो या फिर 3600 से डिवाइड। सो 30 डिवाइडेड बाय 3600 मिनट्स, सॉरी डिग्रीज। और इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या रहता है, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री, देयरफॉर 30 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें। सो 30 सेकेंड्स इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3600 डिग्रीज। सो ये कन्वर्ट हो गया। इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिग्री का सिंबल, मिनट सेकेंड्स था, सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो 3600 से डिवाइड डिग्री का सिंबल। नाउ सिंप्लीफिकेशन, सो ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम। 45 डिवाइड बाय 60 0.75 डिग्री आ गया, 30 डिवाइड बाय 3600 डिवीजन विच इज इक्वल टू 0.00833 डिग्रीज। सो सारे टर्म्स डिग्रीज में आ गए। सो इनको ऐड कर लेते हैं। सो पहले लास्ट टू को, ये डेसिमल फॉर्म से लास्ट टू डेसिमल फॉर्म को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों को ऐड कर लेंगे। सो फाइनल आंसर इज -35.75833 डिग्री। यह है डेसिमल डिग्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 सम्स देखे। फर्स्ट सम के अंदर हमने डिग्री को एक्सपांड करने का मेथड देखा हमने, डेसिमल डिग्री को डिग्रीज मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करने का मेथड देखा। सेकेंड वाले सम्स में हमने जो गिवन जो फॉर्म जो डिग्री मिनट सेकेंड्स में था उसको डेसिमल डिग्री में हमने कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट थर्ड सम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर्स। रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन इज 120 डिग्री है, सो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं। डिग्री क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो 1 डिग्री की इक्विवेलेंट वैल्यू लिखते हैं हम, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियंस। सो फर्स्ट वन है 85 डिग्री, इस डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, 85 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 रेडियंस है, सो ये π/180 रेडियंस से हमने मल्टीप्लाई किया। तो मेथड क्या रहेगा, गिवन क्वांटिटी को जो डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाली क्वांटिटी पाई न्यूमरेटर पर रहेगी, मैंने फ्रैक्शन π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 85 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और रेडियन का सिंबल आएगा। ये था उसका शॉर्टकट मेथड। स्टैंडर्ड मेथड में हम ये क्वांटिटी यूज़ करते हैं और इसके बोथ साइड में हमको ये 1 डिग्री की वैल्यू है, सो हमको 85 डिग्री फाइंड करना है, सो बोथ साइड में 85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो ये क्वांटिटी मिल गई। ना उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, 85 को 180 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हमने डिवाइड किया, ये हमने इसको डिवाइड कर लिया बेसिक
और इसका सिंप्लीफिकेशन मिला हमको 7 पाई बाय 36 रेडियन। सेकेंड वन इज 250 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 250 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। ये इसका शॉर्टकट मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, ये क्वांटिटी है, इसको यूज़ करते हुए 1 डिग्री को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे 250। सो बोथ साइड में 250 मल्टीप्लाई करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, सो ये रिलेशन मिल गया। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन रहेगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर इज 25 पाई बाय 18 रेडियन। थर्ड माइनस 120 डिग्री, डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 132 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज, रेडियन का सिंबल। और स्टैंडर्ड मेथड क्या रहेगा, 1 डिग्री की इक्विवेलेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं हम, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है, सो फाइंड करना है माइनस 132, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे माइनस 132 से मल्टीप्लाई, सबको ये रिलेशन मिलेगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक इसको यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आंसर इज माइनस 11 पाई बाय 15 रेडियन। सो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर कैलकुलेशन बस यहाँ पर कन्वर्जन का मेथड देखा हमने, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, रेडियन का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी का पार्ट जो है ना सिंप्लीफिकेशन है, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशंस रहते हैं, ये इसको यूज़ करते हुए हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ फोर्थ वन इज 65 डिग्री 30 मिनट्स है, इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियंस में। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट डिग्री में यानी डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट सॉरी ये डिग्री वाला पार्ट प्लस मिनट वाला पार्ट। अब इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू मतलब ये मिनट में, मिनट टू डिग्री, स्मॉल टू लार्ज, तो 60 से डिवाइड करते हैं, सो 30 डिवाइड बाय 60 डिग्री। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 0 0 कैंसिल, 3 डिवाइड बाय 6 यानी हाफ मिलेगा, सो ये हाफ डिग्री मिल गया। तो दोनों भी क्वांटिटीज़ कैसे हैं डिग्री में, तो इसको दोनों को अरे एक ही ब्रैकेट में अरेंज कर लेते हैं, 65 डिग्री प्लस 65 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज और ये डिग्री का सिंबल। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 इंटू 65 प्लस 1, सो 131 डिवाइड बाई 2 डिग्री, सो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री में कन्वर्ट हो जाने, इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी, सो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमको डिग्री में मिल गया, ये डिग्री मिनट में था, हमने इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन वाला पार्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, सो इस क्वांटिटी को हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज, रेडियन का सिंबल। नाउ सिंप्लीफिकेशन, तो इसको 1 ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, सो 131 पाई बाय 360 ब्रैकेट क्लोज और ये रेडियंस, सो गिवन डिग्री मिनट्स ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ सेकंड भी सेम वैसे ही है, सो पहले इसको इस डिग्री मिनट को कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो एक्सपांडेबल फॉर्म, डिग्री वाला पार्ट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करेंगे, सो 40 डिग्री एज इट इज़ प्लस 48 बाय 60 डिग्री, 40 डिग्री एज इट इज़, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद 4/5 मिला है, दोनों को एक ही ब्रैकेट में अरेंज कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 5 इंटू 40 200 प्लस 4 200 नॉट 4 डिवाइड बाय यानी 204 डिवाइड बाय 5 डिग्री मिल गया। सो ये डिग्री मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई रेडियन। नाउ बेसिक सिंप्लीफिकेशन, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड आंसर इज 17 पाई बाय 75 रेडियन। नाउ लास्ट सम है, इसमें हमको एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, यानी रिवर्स पार्ट। लास्ट सम में हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब ये गिवन रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। सो वी यूज द रिलेशन, यानी 1 रेडियन की वैल्यू यूज करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री नंबर्स में रहता है 180 न्यूमरेटर पर। सो हम रिलेशन यूज करेंगे ये दोनों रिलेशन कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180
डिग्री। दोनों में से कोई भी एक रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट गिवन पार्ट इज 7 पाई बाय 12 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्रीज। नो सिंप्लीफिकेशन, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से 180 को डिवाइड कर लेना, सो 15 मिलेगा, 15 7 जा 105 डिग्रीज। सेकेंड वन है -5 पाई बाय 3 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो गिवन क्वांटिटी को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री का सिंबल। नाउ पाई पाई कैंसिल, 3 से 180 को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 60, सो 60 इंटू 5 इज -300 डिग्रीज। थर्ड वन इज 5 रेडियन है, 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री मतलब 180 पाई, 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई किए, डिग्री का सिंबल। ये 180 और 5 का प्रोडक्ट, सो 900 डिवाइड बाय पाई डिग्री। फोर्थ वन इज 11 पाई बाय 18 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री का सिंबल। पाई पाई कैंसिल, 18 और ये 80 180 का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 10 इंटू 11 इज 110 डिग्रीज। लास्ट सम इज -1/4 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो -1/4 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रेडियन का सिंबल। सो न्यूमरेटर पर 180 रहेगा, सो माइनस ये 4 से इसको डिवाइड कर लेना, तो आंसर इज -45 बाय पाई डिग्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को देखा है, एक डिग्री मेजर, दूसरा रेडियन मेजर। तो वहाँ पर डिग्री मेजर्स में हमने फॉर्मूलेज देखे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। उसी को यूटिलाइज करते हुए हमने 1 मिनट और 1 सेकेंड की वैल्यू को फाइंड किया है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा रेडियन मेजर्स, रेडियन मेजर को हमने डिफाइन किया, वो सेंट्रल एंगल है सबटेंडेड बाय आर्क है, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन सेंट्रल एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन, और 1 रेडियन की इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो हमने डिफाइन की, वो हमको मिली है 180 बाय पाई डिग्री मिला है। वहीं से हमको दो रिलेशन मिले, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। सो इसके बाद हमने सम्स को देखे, 3 यानी 2 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाले जो हमने सम्स देखे, ये जो है ना टेक्स्ट बुक से थोड़े डिफरेंट है, मतलब टेक्स्ट बुक के जो सम्स है हमने क्वांटिटीज जो है ना मतलब डिफरेंट लिया है, तो पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कन्वीनियंट के लिए हमने कुछ डिफरेंट सम्स को लिया था, इनको सॉल्व कीजिए। वहाँ पर सॉल्व करने के बाद टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाला सम जो है ना ये होमवर्क रहेगा, उसको सॉल्व कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस लेक्चर में हमने कन्वर्जन्स देखे, एक देखा है हमने डेसिमल डिग्री को डिग्री रेडियन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, और फिर उसका रिवर्स प्रोसेस देखा। उसके बाद नेक्स्ट सम्स के अंदर हमने डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड देखा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।